अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक एंड आई होप एवरीवन इज़ लाइकिंग माय वीडियो एंड I am trying to give my best, okay, and I am trying to help those people who those students who are related to the IGNOU University, who are even preparing their exams before having any tuition, before having any back help. So my video will be helpful for them, okay, not even helpful, but it will be a god gift for them. I know, I can understand, because I have gone through from from that kind of situation, okay, because it was very difficult in my local area to find the teacher, to find the particular lecturer or the principal or a particular English teacher who can make me understand or all the basic thing of English honors or the MA English, okay. So it is not possible to do it by your own self. Some books are really very tough, okay, like this is MEG 7. This is easy, as you can see. If you are listening or if you are hearing from the video, then it seems like it will become like for anyone, it will become easy to hear, and that anyone can say that it is so easy, why that person is putting their effort so much. But if you will do it in practically, if you will get every syllabic book, then if you will start to reading them, then you would be able to know that what I am trying to say right now. So if you are subscribing not only my channel, I am supposing everyone who are there putting their hard effort to help other people, so it will be helpful also for them. And if you will subscribe and like and appreciate them, then it will be easy for all, for even you, for even everyone, okay. So it's a kind of help, it's a kind of giving and taking procedure. If I am giving lecture, then it means also that I am also learning. This is a kind of learning process, you know. Teaching and learning is a kind of like giving and taking process, okay. It's not a one sided process on one side, no, not a one sided work. So I think I have explained it really very properly, and let's start from our lecture, from our book. The last word from I have left last video. In my last video I have explained from till here, and now I will start from here, from this word flashback, okay. And we all know because the era is running, what the era nowadays is running is like a technological era, okay, technical era is running, okay. So we are living in the scientific world, okay. So flashback is a really very common word, and but in a literary way, what is the meaning of flashback? We are like learning, we are as we can see the line, what the line is saying in literary way. What is interrupting the chronological sequence, presenting an event or episode that happened earlier, ओके. फ्लैशबैक इस एक एक्शन को जो ऑथर ले रहा होता है उसे फ्लैशबैक कहते हैं. इंटरप्ट कर रहा होता है पिछले कुछ वाक़यात को, यानी कि पुरानी बातों को क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के साथ जो हाल में चल रही होती हैं बातें और या वाक़यात या कोई ऐसा मरहला जिसमें वो फ़ौरन से इंटरप्ट करता हुआ पिछली बात को डालता है और बताने की कोशिश करता है, ठीक है. और दूसरा वर्ड है फॉइल, जो कॉन्ट्रास्ट कहलाता है. कॉन्ट्रास्ट किसी भी चीज़ से आप दे लें, दो ऐसे किरदार हो जाते हैं जो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट होते हैं, कुछ ऐसे एपिसोड्स हो जाते हैं जो कॉन्ट्रास्ट होते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं हमारे ड्रामे में या नॉवेल में जो कॉन्ट्रास्टली हमें मिल रहे होते, नज़र आ रहे होते, ठीक है. जॉनरा, थर्ड वन इज़ जॉनरा, ओके. इसे जॉनरा कहते हैं, जॉनरा, ओके. अ फ्रेंच वर्ड टू डिनोट अ लिटरेरी form such as tragedy, comedy, epic, lyric, novel or short story, okay. Here the examples are really very small and very few. I would say even that genre is a kind of huge meaning word, okay. It is denoting a literary huge meaning, we can say. Genre is a kind of like what should I say,
यॉनरा आप किसी को ऐसा मतलब मीनिंग इसका निकाल सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ी चीज़ को आपको समझाने की कोशिश करता है। एक छोटा सा वर्ड, फ्रेंच वर्ड है जो मायने क्या देता है, डिनोट क्या करता है, अदबी किसी चीज़ को, जैसे नॉवेल का लिखने का तरीका हो गया, या जैसे ट्रेजिडी की किसी एक ऐसी चीज़ को दिखाने का तरीका हो गया, कॉमेडी, एपिक, लिरिक, हर एक फॉर्म का एक अपना यॉनरा होता है जिसको ये डिनोट करता है। ठीक है, अब ये वाला वर्ड है हाइपरबॉल। हाइपरबॉल, हाइपरबॉल एक्चुअली किसे कहते हैं, एन एक्सैजरेटेड स्टेटमेंट फॉर कॉमिक और ड्रामेटिक इफेक्ट, समथिंग समटाइम्स नॉट टू बी टेकन लिटरली। हाइपरबॉल बाज़ दफ़ा ड्रामों में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, थिएटरिकल ड्रामों में, स्टेज ड्रामों में ये चीज़ हम बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेटेड, फैलाया हुआ बड़ा चौड़ा सा स्टेटमेंट होता है और मज़ाह मस्ती में इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ दफ़ा असर देने के लिए, मज़ाह मस्ती का असर देने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिया जाता है और ये लिटरली फॉर्म से अलग है। इसे लिटरली अदबी वाक़ियती मतलब इसे वाक़ियन हकीकतन से थोड़ा सा हट के भी किया जाता है, बात की जाती है। ठीक है, जैसे मज़ा मस्ती की बातें इतनी ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताई जाएँ जिससे हंसी का सेंस क्रिएट हो और काफ़ी ज़्यादा लाफेबल बातें क्रिएट हो जाएँ और उस पर पब्लिक जो है वो हंसे। और ये वाक़ियन मतलब जो वाक़ियतन बातें होती हैं, सच्चाई के बेस पे जो बातें होती हैं उससे हट के बात की जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं हाइपरबॉल। तीसरा है अनदर वर्ड इज़ इमेज, वर्ड्स एंड फ्रेसेस विच सजेस्ट कंक्रीट, फिजिकल और डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स प्रेजेंटिंग एन सेंस एक्सपीरियंस, प्रेजेंटिंग अ सेंस एक्सपीरियंस। ओके, वर्ड्स होते हैं, अल्फाज होते हैं, फ्रेसेस होते हैं, जुमले होते हैं काफ़ी, और जो बिल्कुल मजबूत तबई मतलब मजबूत और जिस्मानी और काफ़ी ज़्यादा वाज़ेह करती हुई डिटेल बता रहा होता है और किसको ज़ाहिर कर रहा होता है, प्रेजेंट कर रहा होता है, तजुर्बाती सेंस को ज़ाहिर कर रहा होता है, उसे कहते हैं इमेजरी। ठीक है, उसे कहते हैं इमेज। और द अदर वर्ड है इमेजरी। इमेजरी हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं और इसका नहीं भी बताना पड़े तो भी ठीक है, लेकिन सामने आ गया है तो बता देती हूँ मैं। फिगरेटिव लैंग्वेज विच एक्सपेंड्स द थीम ऑफ अ लिटरेरी वर्क, हमें पीछे भी बहुत ज़्यादा पढ़ा है, फिगरेटिव लैंग्वेज में शामिल होता है। और इमेजरी मतलब तसव्वुराती दुनिया होती है, एक ऑथर की तसव्वुराती दुनिया होती है जो रीडर तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा होता है वो बाय देयर वर्ड्स और बाय देयर फ्रेजेस, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ओके, और लिटरेरी वर्क का जो थीम है उसको बड़ा करके समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, आयरनी, वेरी इंपॉर्टेंट आयरनी, कॉन्ट्रास्ट और डिस्क्रिपेंसीज, कॉन्ट्रास्ट और डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन व्हाट सीम्स टू बी एंड व्हाट एक्चुअली इज़। कॉन्ट्रास्ट होता है, इख्तिलाफ होता है चीज़ों में जो हकीकतन होती है और जो उसी चीज़ के बारे में जो हकीकतन है आपके सामने, जो आप देख रहे हैं, लेकिन जब उसके बारे में ऑथर लिख रहा है तो बिल्कुल ही अपोजिट लिख रहा है। ठीक है, जैसे अमेरिकन एरा में आफ्टर हैविंग फ्रीडम फ्रॉम यूरोप, तो अमेरिका के राइटर्स ने जैसे ही स्टार्ट करना लिखा था अपने सोशल एरा, बैकग्राउंड एरा के बारे में, अपने जो इकोनॉमिकल एरा के बारे में, अपने इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में बिल्कुल ही अपोजिट लिखना शुरू किया था। तो देयर वॉज आयरनी in between their actual scenario and in the literary scenario, तो बिल्कुल ही अपोजिट था। उसको कहते हैं आयरनी, व्हाट इज़ सेड एंड व्हाट इज़ मीन्ड, क्या कहा गया और उसका क्या मतलब था या उसकी हकीकत क्या थी। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर होता है। अब आगे आता है मेटाफर, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स not usually thought of as similar without using like or as, कंपेयर करना, जैसे मिलाना दो जुमलों को, दो चीज़ों को, आम तौर पे जो ख़यालात होते हैं उन्हें बग़ैर लाइक और एज़ के कंपेयर वर्ड, ये दो वर्ड को लगाए बग़ैर, ये दो वर्ड को मिलाए बग़ैर, सेंटेंस में ये दो वर्ड को लगाए बग़ैर जो है ऑथर यूज़ करता है मेटाफर। एक तरह का जैसे एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, उसके थॉट को लिखा, उसने काफ़ी ज़्यादा डीपली जाके उसके थॉट को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन बिल्कुल ही दूसरी लाइन में वो जो है मेल प्रोटैगनिस्ट जो है, हीरो जो है, उसकी थॉट को नीचे लिखा उसने। यहाँ पे कंपैरिजन भी हो रही है और लाइक और एज का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है, उसको कहते हैं मेटाफर। ठीक है, नरेटिव टेक्निक, मेथड्स ऑफ टेलिंग अ स्टोरी। नरेटिव टेक्निक इज़ रियली वेरी सिंपल वन लाइन एक्सप्लेनेशन,
वन लाइन एक्सप्लेनेशन नरेटिव टेक्निक पीछे हमने काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ा है। ये बहुत ही शॉर्ट है। ये ग्लॉसरी टर्म्स में जो 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, समटाइम्स 2.5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसमें इतना लिखना बनता है क्योंकि बिलोंगिंग टू द एमएज स्टूडेंट। मेथड ऑफ टेलिंग अ स्टोरी, वो तरीका जिससे कहानी बताई जाए, वेदर इन अ डिस्क्रिप्टिव वे और वेदर इन अ नरेटिव वे। ओके। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स विच यूजेज अ कॉन्ट्रास्ट ऑफ आइडियाज़। पैराडॉक्स भी मुतजाद ही कहलाता है, अपोजिट ही कहलाता है। क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब ये क्या बात बता रहा होता है कि जब एक आइडिया है उसका कॉन्ट्रास्ट यूज़ करके दूसरा एक आइडिया डाला जाए। ठीक है, ये ऑथर ही अच्छी तरीके से डाल सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब हम एक ट्रेजिडी को जब बयान कर रहे हैं, हम जब उसके साथ ट्रेजिडी को बयान कर रहे हैं और कथारसिस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही हमने कुछ ऐसा इंसिडेंट भी डाला जिसमें कॉमिक है, जिसमें मज़ा मस्ती है, हंसी है, और इस तरीके से वो लिख रहा है कि जिससे हमें पढ़ने में भी अच्छा लगे और हमें उसका ऑथर का पैराडॉक्स जो उसने लिखने की कोशिश की वो भी हमें समझ में आ जाए। हमें समझ में आ जाए कि यहाँ पे पैराडॉक्स है। ठीक है, मुझे लगता है मैंने यहाँ तक ही ख़त्म करना है वीडियो को। और जिन जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कम टू माई कमेंट सेक्शन, टेल मी वेयर आई एम, इफ़ आई एम लैकिंग, I thought I'm not lacking, I have given my best and I will try to give my best. Okay, if someone need anything else related to this MEG, related to the MA English subjects, so I will give and I will try to make video on it. आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।